भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो कड़वा सच ब्रिक्स के मंच पर रखा, उस मंच पर चीन भी मौजूद था। आज गोवा से प्रधानमंत्री मोदी की ये बात भी ध्यान देने लायक थी कि आतंक और आतंकी संगठनों के खिलाफ दोहरी नीति नाकाम होगी। जाहिर है प्रधानमंत्री का ये बयान चीन को भी समझ में आ गया होगा। उस चीन को जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात पर हामी भरता है, लेकिन भारत पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले मसूद अजहर पर कार्रवाई की बात आती है तो अपना वीटो लगा देता है। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. पहली बार मैं प्रधानमंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखता हूं। पाकिस्तान एक समस्या है और पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए समस्या है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक राष्ट्रीय सहमति कि पाकिस्तान से किस तरह से निपटा जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने बेबाक तौर पर अपनी बात रखी है। पूरे दुनिया के लिए टेररिज्म एक ख़तरा है और टेररिज्म का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। देखिए, चाइना साफ बात कहूँ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके फेवर में कर रहे हैं। जिस दिन हम भी इकोनॉमिक इश्यूज़ पर हम इम्प्रूव करें, और मैं समझता हूँ चीन भी समझ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट है, इंडिया के साथ कोऑपरेट करना अक्लमंदी होगा। अब दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि ख़त्म, पाकिस्तान का सारा कुछ खुला कच्चा चच्चा सामने आ चुका है। अब भी अगर कोई पाकिस्तान को फंडिंग देता है, अब भी अगर कोई पाकिस्तान को संभालने की कोशिश करता है, तो वो खुद को हिसाब दे इस दुनिया को कि आप तो टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने इसका विरोध किया है, कई लोगों ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए कहा है, कई लोगों ने पिटीशन डाली है इसके ऊपर। और ये केवल भारत नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से साक का समिट भी जो नहीं हुआ तो किसी कारण हुआ रहेगा ना। तो जानते हैं कि कहीं ना जाके इस तरह की जो चीजें हैं कि आतंकवादियों को जो पनाह दी जा रही, शेयर दी जा रही है, कहीं ना कहीं जाके वहां है। तो आपने देखा, तमाम पार्टियां एकजुट हैं। प्रधानमंत्री ने जो आतंकवाद का मुद्दा उठाया उस पर एक मत एक राय नजर आती। आपको सीधे ले चलते हैं ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बोल रही। Across the country for potential investors, we have also taken initiatives like High-Tech City in Kaliakot Software Technology Park in Jessore and Sylhet Electronic City, which are opportunities for high-tech investors. Our liberal investment policy includes protection of foreign investment by law, generous tax holiday, concessionary duty on import of machinery, remittances of royalty, 100% foreign equity, unrestricted exit policy, full repatriation of dividend and capital on exit. We can assure you that our regimes and incentives are indeed competitive and regulatory and policy environments are supportive. Now that BRICS countries have put forward two new multilateral development banks, I would call for the banks special attention to the opportunities in the low-income countries. Second, BIMSTEC region recognizes the need to focus on development of science, technology, innovation capabilities. The world is now focused on learning. Sizable part of our population needs access to technologies in farming, water, sanitation, and basic health. We also need to develop and adapt technologies to address the challenges arising
out of climate change. We are focusing on innovative public service delivery, mass access to information, and enhanced transparency and accountability to build an inclusive, empowered, digital, and knowledge-based society. We have set up about 10,000 digital centers across the country to cater 200 different services to our people's doorsteps. Digital laboratories and multimedia classrooms are operating in growing number of educational institutions. We are extensively utilizing ICT for decentralizing service delivery to elevate Bangladesh to a middle-income country by 2020. और इससे पहले पीएम मोदी ने क्या कहा बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों शासन अध्यक्षों के साथ बैठक में, आइए आपको सुनाते हैं। There exists a large basket of economic opportunities. With 1.25 billion people and a combined GDP of 2.5 trillion US dollars, the countries of BIMSTEC have shared aspirations for growth, development, commerce and technology. The quest for economic prosperity can shape the agenda for building economic partnership with BRICS. तो इकोनॉमी इसमें एक प्रमुख मुद्दा रहा, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद को उठाया गया और उस पर तमाम ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति जताई, सिर्फ ब्रिक्स नहीं बल्कि बिम्स्टेक देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया है, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। उसको लेकर तमाम रिएक्शंस अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाए। कुछ और लोगों का क्या कहना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, फॉरेन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। At the BRICS summit today, Prime Minister Modi, I think, has again drawn attention to the challenge of terrorism and the need for a certain political consensus. And the fact that he was addressing a forum that had the leaders of both Russia and China, apart of course from Brazil and South Africa, had a certain subtext. And I think there the reference to Pakistan, without naming it, he spoke about the fact, Mr. Modi spoke about one neighbor, which has become quote unquote the mothership of support to terrorism. So I think in that sense, given the fact that there are certain protocols that we associate with summit level meetings, Prime Minister Modi has been consistent in drawing attention to the challenge of terrorism. प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो बेस्ड है कि पाकिस्तान में से क्या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है और सब देशों में, खास करके दक्षिण एशिया के जो देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और इवन चीन भी है, रूस भी है, सब देशों को मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान से उनके टेररिज्म के हाथ जुड़े हुए हैं। और ब्रिक्स के लिए आवश्यक है कि ये नई संस्था है, उसको आगे बढ़ना है, विश्व में एक बड़ा रोल प्ले करना है और रशिया, चाइना, इंडिया, ये इसके जो एशियन पिवट के जो सब कर रहे हैं देश, उसके साथ में मिलकर चलना है, वहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है, पीस लानी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है। तो इसे आवश्यक है कि उसके लिए जितने भी थ्रेट्स हैं, खासकर ये जो टेररिज्म का थ्रेट है, उसको खत्म करना है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी गोवा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, जॉइंट डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो इसमें आतंकवाद पर भारत जिन कड़े शब्दों का जिक्र चाहता था वैसा देखने को मिला है। आपको लगता है कि ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत से ही जो पिच आतंकवाद के खिलाफ सेट करी थी, वो यहाँ पर जब गोवा डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें साफ तौर पर दिखा। और दिखा ही नहीं, बिल्कुल आतंकवाद को लेकर जिस कड़े शब्दों में गोवा डिक्लेरेशन में बात की गई है, वो अपने आप में बहुत ही एक तरह से कहें तो कूटनीतिक जीत कही जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि भले ही चीन ने पाकिस्तान का एक बार भी नाम न लिया हो टेररिज्म के मद्देनजर, लेकिन चीन की मौजूदगी में भारत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद की एक तरह से कहें तो मदरशिप कह दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर ये सेलेक्टिव अप्रोच रहा तो इसकी वजह से काफी नुकसान हो जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है
वो कहीं ना कहीं बेकार साबित होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ जो सेलेक्टिव अप्रोच चाइना अपनाता है वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के बारे में और पड़ोसी मुल्क के बारे में साफ तौर पे कहा कि जो पूरे इस रीजन का जो प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर टेररिज्म पर ध्यान नहीं दिया गया, आतंकवाद पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये इस पूरे जो ग्रोथ साइकिल है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है और बन सकता है। बिल्कुल आलोक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न केवल प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, बल्कि कहीं ना कहीं चाइना को भी नसीहत दी है कि अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं तो आपके लिए भी आगे चल के नुकसान हो सकता है। और इससे आप बने रहिए आलोक हमारे साथ, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और व्यापार को लेकर रुकावटें दूर की हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को भी जरूरी बताया। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी जोखिम के दौर से गुजर रही है और ब्रिक्स देशों को अपने देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। Our business communities are the strongest proponents for closer and faster commercial cooperation among BRICS. The partnership creates wealth and value in our societies. Excellencies, in India, we have undertaken substantial reforms in the last 2 years to streamline and simplify governance, especially doing business in India. The results are clearly visible. We have transformed India into one of the most open economies in the world today. वही आपको सुनवाते हैं ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन केवी कामत और अपोलो टायर्स के चेयरमैन ओंकार सिंह कंवर ने क्या कहा। Shanghai, our host city, has been enormously supportive. At an operational level, we have approved loans in each of our member countries for an aggregate amount of US $911 million, and we have some more loans in the pipeline for this current year. These loans have been in the area of renewable energy. Thus, we have begun the process of establishing our credentials as an institution that supports green and sustainable infrastructure. Our shareholders have brought in capital as scheduled, with 3 countries, Russia, China and South Africa, having paid in the second year's capital in advance. In July, we successfully closed the first green bond issue in China for an amount of renminbi 3 billion or about US $450 million. We believe that providing local currency financing for projects minimizes the currency risk and reduces the effective cost for our member countries. We will, for that reason, seek to mobilize funds in the markets and currencies of our member countries. In the coming year, in the first half, we plan to approach the local bond markets in India, maybe via an offshore route, and will thereafter seek to approach other local currency markets in our other member countries. We believe that the BRICS Business Council can effectively engage as an advisory council to the new development bank for enhancing private sector participation in the development projects. We have therefore also requested NDB to provide an observer status to the chairpersons of BRICS Business Council. The Council also requests that BRICS country should create a BRICS angels network, which can help unlock the potential of talented young entrepreneurs across BRICS country, create an ecosystem of startup, thereby fostering entrepreneurship and promoting innovation. Agriculture and energy are the priority areas of cooperation of our economies. We have suggested sharing best practices in agriculture production, productivity, environment protection, water conservation, as well as food security. एक बार फिर से रुक करते हैं आलोक का, जो कि गोवा में मौजूद है। आलोक, आतंकवाद तो ब्रिक्स सम्मेलन में प्रमुख मुद्दा रहा, वो हमने देखा ही है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो इस पर बात कितनी आगे बढ़ी? देखिए, इसके अलावा जो यहाँ पर
इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड्स, तमाम चीज़ों की बात हुई, अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि इस पूरे एरिया में एक ट्रेड फ्री जोन की बात की गई है। साथ ही साथ चाइना का कंसर्न था कि जो इस वक्त जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उसमें उसको और जगह दी जाए, उसको और मार्केट दिया जाए। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, तो जो रशिया के साथ जो कोऑपरेशन डील साइन हुए हैं, इकोनॉमिक डील साइन हुए हैं, रशिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक डील साइन हुए हैं, डिफेंस डील साइन हुए, अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ चाइना के साथ भी कई सारे मुद्दों पर जो एग्रीमेंट साइन हुए वो इकोनॉमिक अगर नजरिए से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है ब्रिक्स को लेकर। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, अगर कहें तो इकोनॉमिक फोरम पे भी भारत ने इस पूरे एरिया में ये दिखा दिया कि भारत का जो ग्रोथ है, भारत का जो एक जो रफ्तार है, इकोनॉमिक रफ्तार, उसको लेकर पूरी दुनिया की नजर है और वो इस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर बना हुआ है और आने वाले दिनों में और बेहतर डेस्टिनेशन होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इसलिए भारत को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। भारत चूंकि इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में एक चमकता सितारा है और इस लिहाज से जो ब्रिक्स सम्मेलन में उसने जो अपनी धाक जमाई वो अपने आप में एक अलग है। बिल्कुल आलोक, बिल्कुल सही कहा आपने, एक ब्राइट स्टार है। और अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो 5 देशों में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ 7 और 8% के आसपास है। बाकी सभी देशों में इस समय कहीं ना कहीं स्लंप है।